Hello students, welcome to our BARC weekly drill. In today's video, we will solve one reading comprehension based on the topic sociology. तो चलिए start करते हैं. The passage below is accompanied by two questions. Based on the passage, choose the best answer for each question. दो questions है, दोनों questions को हमें solve करना है और दोनों question इस passage के basis पे ही है. तो चलिए start करते हैं पढ़ना ये वाला passage. Modern societies often celebrate individual agency as the cornerstone of progress. So, in modern society, how much agency as an individual you have, how much power as an individual you have, is considered as progress. Yet, this emphasis obscures the extent to which individual choices are socially conditioned. But the choices we make are usually socially conditioned and we are not usually aware of it. What appears as personal preference is frequently shaped by cultural norms. So, what we think is our personal preference is shaped or comes from the cultural norms, institutional frameworks, and historical contingencies. So, whatever we decide at this particular moment has a lot of history behind it. It might be coming out of our cultural norms, it might be coming out of institutional frameworks or historical contingencies. For instance, career aspirations are rarely formed in isolation. तो जो करियर एस्पिरेशंस हमारे हैं वो आइसोलेशन में कभी भी नहीं, मतलब हम पे इंडिविजुअली हमें लग रहा है हमने ये करना चाहिए इसलिए हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. यूजुअली क्या होता है, दे इमर्ज एट द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिलियल एक्सपेक्टेशंस. मतलब एज अ फैमिली तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके बेसिस पे हमारे इंडिविजुअल चॉइसेस जनरली होते हैं. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड सोसाइटल नरेटिव्स ऑफ सक्सेस. सो सक्सेस किस तरीके से डिफाइन की गई है सोसाइटी में, उसके पीछे हम भागते रहते हैं, उसके हिसाब से हमारे चॉइसेस भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, राइट. However, acknowledging this embeddedness does not negate agency altogether. So, अब यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं हम कि ऑल्दो ये सारी चीजें हैं, इनके बेसिस पर हम डिसीजन ले रहे हैं, फिर भी एजेंसी है हमारे पास या नहीं है, इसे पूरी तरीके से निगेट नहीं किया जा सकता. इंस्टेड इट कॉम्प्लिकेट्स इट. इंडिविजुअल्स नेविगेट प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, समटाइम्स रीइंफोर्सिंग देम एंड अदर टाइम्स सबवर्टिंग देम. मतलब दोनों चीजें इकट्ठा कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स आर समटाइम्स एक्चुअली reinforcing what is pre-existing. They are not coming up with anything new. They are saying that this is my personal choice by simply reinforcing what is already there in the structure, right? Sometimes reinforcing them and other times subverting them. And other times what do? They subvert them. वो उसे पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, ऐसा भी करते हैं. तो दोनों चीजें साइड बाय साइड देखी जा सकती है. Social change therefore cannot be attributed solely to either structural forces. मतलब when we talk about social change, it cannot be attributed totally to structural forces or individual actions. So structural forces or individual actions alone cannot really change the society, right? What arises from their dynamic interplay. But how these two things interplay together is something that changes society in the long run. To reduce one to the other is to misunderstand the nature of human behavior. If we are saying only one works and second does not work, or second works but first does not work, then we are not understanding human behavior completely. Here we are uh, living in some la la land and we are saying this is done without any proper comprehension of it. Okay. तो ये था हमारा पैसेज. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस, यहाँ हमें पूछी जा रही है मेन आइडिया पैसेज की क्या है. ऑप्शंस देखेंगे. इंडिविजुअल चॉइसेस आर एंटायरली डिटरमाइंड बाय सोसाइटी. अब देखिए एंटायरली ये वर्ड है, एंटायरली डिटरमाइंड बाय सोसाइटी. क्या हम ये कह रहे हैं कि इट इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय सोसाइटी? बहुत सारे और फैक्टर है जो ये डिसाइड करते हैं, राइट. सो दिस कैन नॉट बी योर ऑप्शन. ऐसे जो एक्सट्रीम ऑप्शंस है ना, उनको देखकर पहले ही आपके दिमाग में शक आ जाना चाहिए कि मे बी दे आर जस्ट throwing us or they are pushing us away from the real answer, right? Social structures completely eliminate again extreme option. ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है. Individual agency exists but is shaped and constrained by social context. बिल्कुल. तो इसी बैलेंस्ड आंसर की उम्मीद कर रहे थे कब से, क्योंकि ऐसा ही कहा गया है पैसेज में
इंडिविजुअल एजेंसी एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन इंडिविजुअल भी जो चॉइसेस करते हैं वो किन चीजों पर आधारित होते हैं? इट इज शेप्ड एंड कंस्ट्रेन्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट्स. ओके, सो दिस सर्टेनली कैन बी आवर आंसर. सोशल चेंज इज ओनली पॉसिबल थ्रू इंडिविजुअल रिबेलियन. हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल के हिसाब से ही चलना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सोशल नॉर्म्स चेंज होते हैं, इंडिविजुअल चेंज होते हैं, और दोनों का जो इंटरप्ले है उससे धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होती है लॉन्ग रन में. सो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गाइस. ओके, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? पीपल हैव इन्फर क्या किया जा सकता है पैसेज से? एक तरीके से देखेंगे तो हमने मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया देखा. अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पैसेज का मतलब क्या निकाला जा सकता है, राइट? पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डिसीजंस. आर वी सेइंग दे हैव? ये भी देखिए, नेगेटिव नेगेटिव में एक्सट्रीम एक्सट्रीम नेगेटिव पे जा रहा है. अगेन दिस कैन नॉट बी अवर आंसर. सोशल स्ट्रक्चर्स आर इररिलेवेंट टू पर्सनल चॉइसेस. क्या हम ये कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर्स जो है इररिलेवेंट है? हम तो कह रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर्स का परिणाम होता है पर्सनल चॉइसेस पे, तो ये इन्फर नहीं किया जा सकता, राइट? दिस इज रॉन्ग. इंडिविजुअल एक्शंस कैन बोथ सस्टेन एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स. ऑफ कोर्स, इंडिविजुअल एक्शंस कैन एक्चुअली रीइंफोर्स व्हाट इज देयर इन द स्ट्रक्चर, और they can challenge it at the same time. यही बात कर रहे हैं. This can be inferred from the passage because we are talking about it, right? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो कुछ एक दो शब्द है जो बिल्कुल इसी बारे में बात करते हैं. Sometimes reinforcing them. देखिए क्या कह रहे हैं हम? Sometimes reinforcing them and sometimes subverting them, right? Sometimes subverting them. यही बात हो रही है यहाँ पे कि कभी रेनफोर्स करते हैं, कभी जो है उन्हें चैलेंज करते हैं. तो हम यहाँ पर बात करें, इंडिविजुअल एक्शंस कैन बोथ सस्टेन एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स. हम पूरे इसमें इसी चीज की बात कर रहे हैं. सोशल चेंज हैपेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल्स. नहीं, एक्सट्रीम. सब यहाँ पर जो रॉन्ग है ना, वो दोज आर एक्सट्रीम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स. ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कि दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. I hope you have understood this, guys. Make sure that you keep solving a lot of RCs because it is already the month of May now. I'm shooting this on 9th of May, so you can understand कि अब बहुत कम टाइम बाकी है. Now is the time that you take a concrete decision and start solving, start practicing with a proper plan and strategy. Okay, please don't overthink. What I would suggest you, go to our website, check our VARC course. Please buy that course. It is just in 1500 rupees, but it will help you understand what all you are supposed to solve, how you are supposed to plan the things. You will get started. All the questions that you get there are basically easy to moderate. Mainly तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे questions, but those questions will help you uh, warm up your brain for your practice. बोथ क्लास वर्क प्रैक्टिस सेट्स हैं, होमवर्क प्रैक्टिस सेट्स है. इसके अलावा काफी सारे टॉपिक्स के हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी पास्ट ईयर पेपर्स के वहां पर अवेलेबल है. तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू वार्म अप योर माइंड एंड ब्रेन towards your CAT examination. So make sure you're not taking more time to decide it today, now itself, and start practicing, guys. Let's be serious towards our CAT practice now onwards. Okay, see you in the next video. Bye bye.